Today we will discuss about some of the important questions of chapter chemical reaction and equation. These questions are very important for the point of view for the coming board examination. Okay. Let us start and see the first question. The first question is, write the type of reaction for the following. At first, the reaction between acid and base and rusting of iron. As we know, reaction between acid and base are the kind of neutralization reaction, but rusting of iron is a kind of oxidation reaction. Why? Because during the neutralization reaction, acid and base react and form water and salt. This is the common salt. Okay. But in oxidation reaction, the iron react with the oxygen present in atmosphere to form Fe2O3.H2O, and this is the rusting. Okay. Now what the second question is, learn all these questions carefully because these questions are very important for the coming board examination. Okay. You understand the answers? Now the second question is, what happened when quicklime added to the water? Think about that. When you add quicklime mix into water, we get calcium hydroxide, and this is what? This is the base. At that time, the container became hot. Okay. It means large amount of heat is produced along with formation of calcium hydroxide. This is the answer of the second question. Now, which law we kept in our mind when we try to balance the chemical equation? The correct answer is law of conservation of mass, which states that matter can neither be created nor be destroyed. It means mass of reactant must be equal to mass of product. Okay. It means to justify the law of conservation of mass, we need to balance the chemical equation. Okay. Let us see the next question. Question number 4. Why do we store the silver chloride? Okay, why do we store the silver chloride? Why do we store the silver chloride in a dark bottle? Why? Because silver chloride undergo photochemical decomposition. It means AgCl2, when there is sunlight, it decomposes into Ag and Cl2. Therefore, to prevent the photochemical reaction, we should store the silver chloride into a dark colored bottle. Now the fifth question is, you have to write the chemical reactions occur when sodium carbonate and hydrochloric acid react. Sodium carbonate and hydrochloric acid when react, it forms the sodium chloride, carbon dioxide gas released and water vapor is formed.
Okay, and this is the solution of question number 5. Now what the question number 6? We have to identify oxidizing and reducing agent. Then what the oxidizing agent is? Oxidizing agent is those substance that lost the oxygen and gain the hydrogen. Here is in water there is loss of oxygen and in iron there is gain of oxygen. Then oxidizing agent is water and reducing agent is आयरन. तो क्या याद रखना भाई? अगर आपको याद रखना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो आप क्या करोगे भाई? आप करोगे यहां पे लॉस ऑफ O2 और क्या हो जाएगा? गेन ऑफ H2. और अगर बात करते हैं कौन सा भाई? रिड्यूसिंग एजेंट का, तो यहां पे क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट जो हो जाएगा उसका मेन पर्पस क्या हो जाएगा भाई? गेन ऑफ O2. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है दूसरे को, इसलिए वो लॉस करेगा और हाइड्रोजन रिसीव करेगा. और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा भाई? जो खुद उससे क्या लेगा? ऑक्सीजन ले लेगा और क्या प्रोवाइड करेगा उसको? हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का लॉस करेगा. ओके, कंफर्म? वेरी गुड. लेट अस सम मोर क्वेश्चन इन डिटेल. क्वेश्चन नंबर 7. What the question number 7 is? Here are some equations. We need to write these equation using the symbols and chemical formula. That is a chemical reaction. Lead nitrate PbNO3 whole twice. When heated, जब उसको आप क्या करोगे भाई? हीट करोगे तो लीड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा और साथ में कौन सा गैस रिलीज होगा भाई? ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा. Similarly, quicklime combined with carbon dioxide. When quicklime combined with carbon dioxide, calcium carbonate is formed. Okay, this is the equation for the second statement. And third statement is what happens when aluminum metal granules is added to sulfuric acid? During this reaction, aluminum sulfate is formed and hydrogen gas is released. This is the equation for the second reaction. Okay, it means when acid react with metal, what is released? Hydrogen is released. यानी ये क्या हो गया? मेटल जब रिएक्ट करेगा किसके साथ? एसिड के साथ, तो क्या बनेगा भाई? ये बन जाएगा आपका सॉल्ट और साथ में क्या निकल जाएगा? H2 गैस रिलीज हो जाएगा. ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? जब बेस रिएक्ट करेगा किसके साथ? अब देख लो, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? बेसिक है. अब ये बेस रिएक्ट करेगा किसके साथ? ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल. तो क्या बनाता है भाई? ये फिर से क्या बना लेगा? आपका सॉल्ट बना लेगा, बट वाटर रिलीज नहीं होगा. ओके, मेमोराइज दिस टर्म्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नो chemical reaction takes place when a granules of solid A are mixed with the powder of another solid B. A is granules and B is powder. Okay, no reaction takes place. However, when the mixture is heated, it means normally जब आप उसको मिक्स करते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता. जब आप हीट करते हैं, ठीक है, तो वन ऑफ द प्रोडक्ट इज C, यानी A ग्रेनुअल्स. ए क्या हो गया भाई? ग्रेनुअल्स है. और बी क्या है भाई? बी इज
पाउडर और सी की बात कर रहे हो, क्या बनेगा? ये बनेगा मेटल एंड सेटल डाउन इन द मोल्टन स्टेट while the other compound is D. D क्या करता है भाई? ये फ्लोट्स करने लगता है। अब आपको इसको पहचानना है। पर ये एक और बात हो गया, ये बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी मेमोराइज करना है। कौन सा रिएक्शन है? मेन पॉइंट हो गया, ये क्या है? हाईली एक्सोथर्मिक, यानी कि ढेर सारा हीट इसमें रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब चलो, अब इस पूरी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपने को क्या करना है? अब आपको सबसे पहले क्या बताना है? ए और बी के बारे में इंफॉर्मेशन देना है और उसका क्या लिखना है? केमिकल इक्वेशंस। अब उसमें आपको क्या क्या बताना है? आपको कंडीशंस ऑफ रिएक्टेंट बताना है, फिजिकल स्टेट बताना है, किसका? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, और थर्मल स्टेटस भी बताना है, क्या हीट रिलीज हो रहा है या नहीं रिलीज हो रहा है। ठीक है, चलो बात करते हैं। अब हम सॉलिड की बात करते हैं। अब उसको हम लोग ले लेते हैं मैग्नीज ऑक्साइड। तो सॉलिड क्या हो गया भाई? सॉलिड हो गया MnO2, दिस इज A, एंड B कैन बी एज्यूम टू बी एल्यूमिनियम पाउडर। तो भाई एल्यूमिनियम क्या हो गया? B हो गया। B का पता चल गया और A का पता चल गया। अब इस दोनों को क्या करना? हीट करना है। अब जब आप हीट करोगे मैग्नीशियम ऑक्साइड को किसके साथ? एल्युमिनियम पाउडर के साथ, तो कौन सा रिएक्शन होगा? ये बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक हो गया। एल्युमिनियम को जब MnO2 के साथ आप रिएक्ट करते हो तो फिर क्या बनता है, ये देखना है भाई। ठीक है, और ये कौन सा रिएक्शन है? बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और क्या रिलीज होगा इसमें भाई? बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। Then what kind of reaction it is? It is a kind of displacement reaction. क्या बनेगा? Al2O3, अल्युमिनियम ऑक्साइड और मैग्नीज आयन बनेगा। ठीक है, अब आपको देखना है क्या हुआ भाई? There is an addition of aluminum, there is an addition of oxygen in aluminum. क्या हो गया? एल्युमिनियम में क्या हो गया? एडिशन हो गया है, और इसमें क्या हो गया? रिमूवल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ये हो जाएगा, इसका क्या हो गया? रिडक्शन। किसका ऑक्सीडेशन हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया एल्युमिनियम का, और रिडक्शन हो गया मैग्नीज ऑक्साइड का। तो भाई ये कौन सा रिएक्शन हो गया? रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। एक्सोथर्मिक तो है ही, और साथ में ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी। ओके, लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 10। ओके, व्हेन अ ग्रीन आयरन सॉल्ट, अब ये आइडिया आपको आ गया भाई, ग्रीन आयरन सॉल्ट कौन? तो बता दो। ग्रीन आयरन सॉल्ट है FeSO4। आप इसको क्या करना है भाई? आप कर लो इसको हीट, तो पता चल जाएगा क्या बनेगा? Fe क्या बनेगा भाई? FeO, ये बन जाएगा आपको FeO प्लस SO2, और क्या निकल जाएगा? ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? तो भाई कौन सा सब्सटेंस यहाँ पे आप बात करो, चूंकि ये ग्रीन कलर का होता है, ये कैसा होता है भाई? ये होता है आपको ग्रीन कलर का। ठीक है, तो ग्रीन कलर यहाँ पे लॉस्ट हो जाएगा। बिल्कुल, ये कौन सा रिएक्शन हो गया भाई? दिस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देन व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस? व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन? अ रिएक्शन इन विच देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब हम बात करते हैं किसका? जिंक ऑक्साइड की बात करें। किसकी बात करते हैं हम लोग? जिंक ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं भाई? कार्बन के साथ। तो क्या बन जाता है? Zn और CO। अब देख लो यहाँ पे, इसमें क्या हो गया? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। अब इसमें क्या हो गया भाई?
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा रिडक्शन। किसका रिडक्शन हो गया? जिंक ऑक्साइड का। किसका ऑक्सीडेशन हो गया? कार्बन का। ठीक है, पता चल गया भाई, जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो गया और कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. What the question number 12 is, what happened when HCl added to the copper oxide? जब कॉपर ऑक्साइड को HCl के साथ ऐड करोगे तो बन जाएगा सॉल्ट और रिलीज हो जाएगा वाटर वेपर। अब ये जो न्यू कंपाउंड बनेगा ना, वो जो न्यू कंपाउंड बनेगा वो अब देख लो कौन से कलर का होगा वो। ठीक है, क्योंकि यहां बता रहा था भाई न्यू कंपाउंड जो बनेगा उसमें ब्लू कलर कहां से आता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। कॉपर के प्रेजेंस के कारण उसके पास क्या होता है? ब्लू कलर आ जाता है सॉल्यूशन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 30, ध्यान से पढ़ो। व्हेन पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज हीटेड, किसको ऐड करना है? पोटाशियम आयोडाइड। सब एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन, उसको ऐड करना है किसमें? लीड नाइट्रेट में ऐड करना है। अब देख लो, पोटाशियम आयोडाइड को जब आप लीड नाइट्रेट में ऐड करोगे तो पोटाशियम आयोडाइड बनेगा अब, और क्या हो जाएगा? ये आपके पास पोटाशियम नाइट्रेट बन जाएगा। अब ये देख लो यहां प्रिसिपिटेट किसका बन गया भाई? प्रिसिपिटेट बन गया आपको पोटाशियम आयोडाइड का। और ये कलर कौन सा है इसका? येलो इन कलर। ठीक है, यानी PbI2 किस कलर का होगा भाई? ये येलो कलर का प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है। क्लियर है? अब ये तो क्लियर है कि भाई ये कौन सा रिएक्शन होगा? डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन होगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है भाई कलर बताना है किसका? प्रिसिपिटेट का। कंपाउंड का नाम बताना है तो पोटाशियम आयोडाइड हो जाएगा। बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना है तो हमने बैलेंस कर दिया, और लास्ट में बताना था any two type of reaction in which this reaction can be placed. अब इसको क्या कर सकते हैं बता दो। अब इसकी अगर हम लोग बात करें, अब इसमें दो टाइप के हम लोग रिएक्शन की बात करें तो ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हो गया। कौन सा हो गया ये? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन, और साथ में प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी हो गया। तो ये आपका हो गया इसका सॉल्यूशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बंदा अभी जो है ना वो क्या कर रहा है? मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहा है। अब उसको टीचर ने बोला भाई क्लीन करो रिबन को बिफोर बर्निंग। अब इसका रीजन बताना। व्हाट कुड बी द रीजन दैट टीचर टोल्ड हिम टू क्लीन द रिबन? व्हाई? बिकॉज देयर इज अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी किसके लिए कर रहा है भाई? लेयर ऑफ ऑक्साइड, और कार्बोनेट का भी लेयर हो सकता है, यानी वो MgO भी हो सकता है और MgCO3 भी बना सकता है। तो भाई मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर हो जाए, या तो ऑक्साइड करके कि एटमॉस्फेयर में क्या होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी अवेलेबल है और ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, दोनों के लेयर को हटाने के लिए हम लोग करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर? अब ये कौन सा रिएक्शन होगा भाई? तो ये पता चल गया कौन सा रिएक्शन होगा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। दिस इज द रिएक्शन फॉर द, दिस इज द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अब देख लो, अब यहाँ पे क्या क्या है। अब आपको करना क्या है, ये जो आपके पास वाटर है उसको आपको डिकम्पोज करना है H2 और O2। ठीक है, इसके लिए हमको एसिडिफाई वाटर चाहिए। ठीक है, अब दो गैसेस बनते हैं, आपको उस गैसेस का नाम बताना है। कौन सा कैथोड पे होता है? तो कैथोड पे होता है हाइड्रोजन, और एनोड पे कौन सा होता है? ऑक्सीजन। यानी ये ऑक्सीजन कहाँ हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा एनोड पे निकलेगा, है ना, और ये कहाँ पे निकलेगा? हाइड्रोजन, दैट इज ऑन द कैथोड। क्लियर है? अब यहां बात पूछ रहा है आपको अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड।
द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, इज, अब देख लो यहां पे, अब इसको बैलेंस कर दो, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस. व्हाई? बिकॉज water is formed by the chemical combination of hydrogen and oxygen that is fixed into 2:1. Because whatever the source of the water, the hydrogen and oxygen always present in 2:1. अब याद होगा ये कहां से है, ये आपको है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. आपको पता है कि कोई भी कंपाउंड आप बनाते हो तो उसमें फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, इक्वेशन आपने देख लिया. क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों ने डिस्कस किया. ओके, चलो तो कुछ और क्वेश्चंस आपको दिखाते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वरुण ने केमिकल रिएक्शन किया, किसमें भाई? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट. तो पता चल गया बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट. ये प्रिसिपिटेट हो गया. क्या होगा भाई? प्रिसिपिटेट. और ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है. तो यहां पर क्या हो गया भाई? देयर इज अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ देयर आयन. कौन सा रिएक्शन हो गया? ये हो गया डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. एंड द अनदर टाइप इज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन. ना तो क्वेश्चन नंबर 17 आराम से देखिए. एक एक क्वेश्चन को अच्छे से बार बार वीडियोस को देखो जिससे आपको क्वेश्चन सर लर्न हो जाए, ज्यादा मुश्किल ना हो आपको. अब बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना है किसके किसके बीच में भाई? सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड. पता चल गया भाई सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करेंगे तो कौन सा गैस निकलेगा, रिलीज होगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगा. ठीक है, कंफर्म, फटाफट हो गया. अब यहां पे बात कर रहा है आपके पास कॉपर ऑक्साइड. अब उसके ऊपर क्या करना है? हाइड्रोजन को पास कराना है. कॉपर एंड स्ट्रीम आर फॉर्म. अब उसका बैलेंस रिएक्शन लिखो. अब देखो कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन गैस को हमने पास करे तो क्या निकला? कॉपर और वाटर. अब इसमें बताना भाई इसमें कंपाउंड क्या है, रिएक्टेंट कौन है, ये सभी चीज हमने इंफॉर्मेशन आपको डाल दिया. ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 19. अब देख लो व्हाट हैपन व्हेन सिल्वर क्लोराइड. अब ये सिल्वर क्लोराइड को डिकम्पोज करना. पता सिल्वर क्लोराइड जब डिकम्पोज होगा तो सिल्वर बनेगा. और इसका यूज कहाँ होता है? ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है. इसका यूज आप करते हो कहाँ पे? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी. इसमें करते हैं हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी. अब चलो, अब कह रहा है ब्लू कलर पाउडर कॉपर नाइट्रेट का, उसको बॉइलिंग ट्यूब में रखना है और क्या करना है? हीट करना है. अब देखो कॉपर नाइट्रेट को जो ही हीट करोगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा और साथ में ऑक्सीजन गैस भी रिलीज हो जाएगा. आपको क्या करना है? सबसे पहले केमिकल रिएक्शन लिखना है. लिख दिया. गैस कौन सा इवॉल्व होगा वो लिख दिया. बताना है कौन सा रिएक्शन है. तो भाई ये डिकम्पोजिशन है. ब्राउन गैस निकलेगा कौन से कलर का? नाइट्रोजन का. और नाइट्रोजन ऑक्साइड कौन सा भाई? ये एसिडिक ऑक्साइड है. ये NO2 कैसा हो गया? ये एसिडिक हो गया. अब ये एसिडिक का मतलब क्या करेगा भाई? इसकी pH वैल्यू जो होगी वो क्या होगा? लेस देन 10 होगा. यानी ये क्या करेगा? ब्लू लिटमस को किस में बदल देगा भाई? ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा. क्लियर है? वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको. अब ये अलग सा क्वेश्चन, बड़ी मजेदार क्वेश्चन है. आपके पास एक साल्ट है. कौन सा? फेरस सल्फेट. अब उसको पहले आप हीट करना है कुछ सेकंड के लिए. अब टेस्ट ट्यूब पे आपको क्या दिख रहा है? वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखना शुरू हो जाएगा. और जो ही आप हीट करोगे तो उसका कलर जो क्रिस्टल का वो चेंज हो जाएगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कलरलेस गैस निकलेगा उसके पास और स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर और एक रेजिड्यू बनेगा जिसका नाम हमने रख दिया है वाई. आपको पता करना है कलर ऑफ क्लिस्टर बिफोर एंड आफ्टर द हीटिंग एंड
आइडेंटिफाई द एक्स एंड वाई। ओके, तो बात कर ले बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर हीटिंग इज ग्रीन और बाद में कैसा हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप FeSO4 को करते हो खटाक से हीट तो बनेगा FeO, है ना, प्लस क्या बनेगा भाई, SO2 और ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी, है ना। ये किस कलर का था भाई, ये ग्रीन कलर का था, अब कैसा हो जाएगा, अब ये हो जाएगा व्हाइट कलर का हो जाएगा। ठीक है, अब बता दो X क्या हो गया, X हो गया, अब यहां पे देख लो X क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड। Y क्या हो गया, पता चल गया, फेरिक ऑक्साइड। ये रिएक्शन आपका हो गया। सेकंड रिएक्शन में कह रहा है, अब इसके बी में देखो, ये एक रिएक्शन दिया गया है आपको, उसको क्या करना था, बैलेंस करना था। ठीक है, फॉलोइंग, ये रिएक्शन यहां से मिस आउट हो गया क्वेश्चन में, मैं फिर से लिख देता हूं, आप समझ जाना किसको करना है भाई। BaCl2 को जब आप एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करवाओगे, एल्युमिनियम किसके साथ, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ, तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। अब इसको बैलेंस करना था, हमने बैलेंस कर दिया। एक और रिएक्शन था, वो भी लिख लीजिए। सेकंड रिएक्शन हमने दिया था, जब आप सोडियम को वाटर में डालोगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा सोडियम ऑक्साइड और क्या रिलीज हो जाएगा भाई, हाइड्रोजन गैस। इसको भी बैलेंस करके दिखा दिया गया। क्लियर है, अच्छे से सभी क्वेश्चन को रिवाइज करना है। अब देख लो क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से देख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए और फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए। और कुछ एक और इक्वेशन दिया हुआ है और इसको देख के आपको पढ़ना है। ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो गया और ऐसा सब्सटेंस जो रिड्यूस हो गया, और बताना ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने आज की वीडियोज में इस टाइप के क्वेश्चन हमने देखे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। अब समझ में आ गया होगा कि एक मेटल है X, ठीक है, जो रिबन के फॉर्म में आता है। ये देखते ही आपको पता चल गया कौन सा होगा ये भाई, X क्या होगा, मैग्नीशियम होगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी Mg को जब आप ऑक्सीजन के साथ हीट करोगे तो बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, पता चल गया भाई। और क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये थोड़ा सा गलत है, क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओहो, ये कह रहा था किसके साथ रिएक्ट करवाना है भाई, ये करवाना है अब आपको, व्हाट प्रोडक्ट वुड बी फॉर्म इफ X इज मेड टू रिएक्ट विथ नाइट्रोजन। अब उसको क्या करना है, जो आपको X जो है, यानी ये जो आप बात करो रिबन के फॉर्म में, उसको किसके साथ कराना, रिएक्ट विथ नाइट्रोजन। ठीक है, अब Mg को N2 के साथ रिएक्शन कराना है, क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट। ठीक है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक्स फॉर एवरीवन वाचिंग द वीडियोस। ऐसे क्वेश्चंस लेके नेक्स्ट जो वीडियोस आएगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड पेपर में आते हैं, वो है चैप्टर एसिड बेसिक साल्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस।